15. Page number 15 start. Yes, sir. It was time for school. Now narrator was ready to go to school. If I got a scolding like this when I passed, I might as well have enjoyed myself and failed. Narrator is saying that though he has passed in good marks, yet his elder brother used to scold him to do more hard work. So narrator is saying here, thinking that it is school time, it was that time school time, and if his brother used to continue scold him, then the joy of his passing in the first place would would ruin, and thus he would enjoy himself as a failure student. ये सेटारिकल लैंग्वेज वो कह रहे हैं कि मेरे भाई इसी तरह डांट रहे हैं फर्स्ट आने पर, और मेरे स्कूल का टाइम है और वो ऐसे ही डांटते रहेंगे तो तय सी बात है कि मेरे पास होने का जो फर्स्ट स्थान में पास हुआ हूँ वह मजा मेरा बिगड़ जाएगा, और मेरा जो मजा है वह एक फेल लड़के जिस तरह का मजा लेते हैं मैं भी वैसा ही मजा लेने लगूंगा, यानी मैं भी फिर फेल होने लगूंगा. The fearful image that my brother had drawn of the studies in his own class had terrified me. कह रहे हैं कि with the experience of the elder brother, realizing that experience, narrator is realizing fear in his heart and thinking that if he would fail then all his first stand joy would ruin. सोचें कि जैसे मेरे बड़े भैया फेल हो करके एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उस चीज को सोच कर मुझे डर और भय लगता है, और मैं सोचता हूं कि अगर मैं फेल होने लगा या फेल हुआ तो फिर जो मेरा फर्स्ट प्लेस आया है वह तो मेरा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा. बट डिस्पाइट मिस होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद. तो बट डिस्पाइट दिस आई कुड नॉट ओवरकम माई डिस्टेस्ट फॉर बुक्स. डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, मीन्स डिस्पाइट ऑफ स्कोल्डिंग और इन स्पाइट ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ माय एल्डर ब्रदर रिलेटेड टू माय स्टडीज एंड कमिंग टू एट द फर्स्ट प्लेस, नरेटर कुड नॉट ओवरकम हिज डिस्टेस्ट मीन्स डिसइंटरेस्ट इन द स्टडी. नरेटर कह रहे कि मैं डरता रहा, मेरे भाई मुझे डराते डांटते रहे, फिर भी मेरे जो पढ़ने में अरुचि थी उससे मैं उबर न सका, मेरा पढ़ने में किताबों को रटने में मन नहीं लगता था. I would not miss any opportunity for sports. I studied too, but not much. The self-confidence I had attained now disappeared, and I was obliged to live like a malefactor. Now, narrator is saying that his interest towards his study could not remove from his mind. He had been continuously interested in sports, games, volleyball, football, cricket, match, etc. Now he tried to study and he studied also, but little bit than needed. जितनी जरूरत थी उससे कम उसने अध्ययन किया और खेल कूद में ज्यादा मन लगा रहा, और अंत में वह जो है एक मेल फैक्टर होकर रह गया. What is मेल फैक्टर? मेल फैक्टर is that person who realizes that he has committed something wrong. वह व्यक्ति जो यह महसूस करके मैंने कुछ थोड़ा मोड़ा गलत कर दिया है, दैट इज कॉल्ड मेल फैक्टर. तो वो जो है यही महसूस करने लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, ऐसा उनके मन में होता है. दैट इज क्योंकि उनके भाई हमेशा डांटते रहते पढ़ने को, फिर भी वह पढ़ाई करते, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करते, जितनी जरूरत होती उतनी पढ़ाई नहीं करते. It was the annual examinations again, annual examination time of annual examination arrived. Once more I got through and my brother flunked. I got through means once more narrator secured good marks and his brother flunked, and again his brother failed in his class, same class. I had not worked very hard but stood first again. Writer is saying that though he had not did hard work, yet he secured first place in his class, but his brother failed in his same class. Even I was surprised
The narrator was surprised. The story writer, narrator who is narrating the whole story, he was totally surprised that without proper study, how could he secure good marks in his class? How could he stand at the first place in his class, in the first position? My brother had learnt every word in the syllabus by rote. By rote means orally, means his brother learnt orally, worked hard to learn, to memorize the whole syllabus, whole lesson. Studying till 10 o'clock at night. His brother used to study at 10 up to 10 o'clock at night, starting again at 4 o'clock in the morning, and again he used to wake up early in the morning at 4 o'clock for the purpose of his study, and from 6 to 9:30 before school, and 6 to 9:30 at the time of going, before the time of going to school. मिस नेटर कह रहे हैं कि इनके भाई रात को 4 बजे से जग के पढ़ते 5 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते तो 6 से लेकर 9:30 तक पढ़ते, उधर रात में 10 बजे तक पढ़ते। इतना हार्ड वर्क किया, फिर भी सेम क्लास में फेल हो गए। और नरेटर खूब जॉय किया, खेला कूदा, मौज मस्ती किया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा, फिर भी फर्स्ट स्थान सिक्योर कर लिया। I felt sad for him. Later is saying that when he came to know that his brother was failed in the same class again, then for this purpose narrator realized some grief in his heart. He broke down when the result was announced. Broke down, break down means होता है फूट पड़ना, टूट पड़ना, लाचार हो जाना। यहाँ break down means फूट फूट कर रो पड़ना। To weep loudly in loud voice, that is harshly. तो narrator कह रहे हैं कि after failure in the same class, his elder brother started to weep in his harsh voice. I also cried. Narrator, having seen weeping to his brother, narrator also started to weep harshly. The joy of having passed was halved. Halved means elapsed, removed, or you can say wrapped with covered. तो नरेटर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लेस सिक्योर किए थे क्लास में, वह इनका फर्स्ट प्लेस सिक्योर करने की खुशी जो थी वह दब गई, समाप्त हो गई, खराब हो गई। क्यों? Because of the harsh weeping of his brother and the narrator himself. Why dear? Why is not my voice clear? 498 kb per second. आपके यहाँ देख लो बेटा, फॉल्ट होगा आपके यहाँ। देखिए सीमा, आप कह रहे थे बेटा अभी लेफ्ट भी हो गया आपका, नेटवर्क छोड़ दे रहा है तो क्लियर वॉइस कहाँ से आएगी? चलो, I also so much. Had I also failed, my brother would not have grieved so much. नरेटर कह रहे हैं कि had I also failed, कह रहे हैं कि यदि मैं फेल हो गया होता, if narrator had failed himself, whether his brother would have wept so sharply like narrator for his brother. कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने भाई के लिए रोता था, रो रहा था और अपने पास होने की खुशी को बर्बाद कर दिया भाई के लिए रोने में, क्या मेरा भाई भी अगर मैं फेल होता तो उसी तरह रोता? शायद नहीं। Now my brother was just one class ahead of me. कह रहे हैं कि अब जो मेरे भाई थे वह ठीक मुझसे एक क्लास आगे थे। ये उनकी पूंछ पकड़े 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 उनके करीब पहुंच गए थे। An evil thought entered my mind suddenly, and rough idea entered or stuck into the mind of the writer. Suppose he failed once again. ये सोचे इनके बुरे दिमाग क्या आया कि अरे भैया तो अब तक आगे थे, धीरे धीरे मैं उनकी पूंछ पकड़ लिया, पीछे आ गया। अगर भैया एक बार और फेल हो जाए, एविल माइंड देखो, अगर भैया एक बार और फेल हो जाए तब तो मैं उनके क्लास में हो ही जाऊंगा, उनके बराबर हो ही जाऊंगा। This was the rough idea in the mind of the narrator in relation to his elder brother. He would lose the high ground to humiliate me. अब इनके दिमाग में आया he would lose the high ground. High ground means high position, यानी बड़े होने का, यानी अगर एक बार और फेल हो जाए। हैंड कफ का मतलब होता है हथकड़ी बेटा,
हाथ बंध जाना, हथकड़ी लग जाना, रस्सी से हाथ बांध देना आगे या पीछे करके, दैट इज कॉल्ड हैंडकफ। चलो, तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा भाई फेल हो जाए बड़ा, मैं उसके क्लास में चला जाऊंगा, तो उसके बाद तो वो जो भौकाल झोंकता रहता है मुझ पे, वो तो उस भाई की चली ही जाएगी, फिर उसका अधिकार ही खत्म हो जाएगा कि वो मुझको डांटे, उल्टे मैं ही उसको समझाने लगूंगा। देखो कितनी खुराफाती दिमाग है इसका, तुम ही लोगों की तरह। बट आई रेंज्ड दिस डिस्पिकेबल, I wrenched means thought, negated, rejected. This means this idea, that is failure of his brother. Despicable means hatred, means यह विचार को मैंने एक नफरत से देखा। यह जब हेट, इतनी शर्मनाक बात मेरे मन में आई तो मुझे अपने आप से नफरत हुई, और मैंने इस बात से नफरत करने लगा कि अरे मैं अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। About of my heart, after all he upbraids me for my own good. Upbraids means scolds, upbraid means to scold, डांटना, to child बुरा भरा कहना। तो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि कितना गंदा हूं मैं, आखिर मेरे भैया हैं, मुझे डांटते हैं पढ़ने के लिए, तो फॉर माई वेलफेयर, माई वेल बीइंग, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए डांटते हैं। मुझे डांटने से उनके लड्डू पूड़ी नहीं मिलता, बल्कि वो सोचते हैं कि मैं पढ़ लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा। माई ब्रदर हैड सॉफ्टेंड डाउन अ बिट, नाउ सॉफ्टेंड डाउन का मतलब अब तक कड़क थे इनके भाई इनकी तरफ, अब जो थे ही वाज सॉफ्ट हार्टेड टुवर्ड्स द नरेटर। अब जो भाई थे, अब लेखक के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति, लेखक के जो भाई थे बड़े, इस लेखक के प्रति अब थोड़ा नाजुक, सॉफ्ट हो गए थे, अब ज्यादा डांटना भौकाल झोंकना छोड़ दिए थे। He restrained himself even when there were occasions to upbraid me. He restrained में होता है restrict, रोकना, to check, वह खुद को रोक लेते हैं himself even when, यहाँ तक कि जब there were occasions, उनके पास मौके होते, to upbraid, मुझे डांटने के लिए, me, उनके पास मुझे डांटने के, अगर वास्तव ऐसे तो पहले क्या था, अनायास भी डांटते, लेकिन जब से मैं पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया और भैया फेल हो गए, तब से उन्हें कुछ एहसास क्या हुआ उनके मन में, भगवान जाने, कि वो कोई पहले तो अनायास डांटते थे, अब तो डांटने का अवसर भी आता था, ऐसा कि नहीं हम डांटे, इसे गलत कर रहा है, तो भी वो मुझे नहीं डांटते थे, भरसक अपने आप को नियंत्रित और कंट्रोल करके रखते थे। I now began to take an undue advantage. Undue advantage means unreasonable advantage. Advantage means लाभ, यानी अब जब चूंकि डांट बड़े भाई की कम हो गई, नरेटर को समझ में आ गई कि अब तो भैया कम डांट रहे हैं, तब उसका ये गलत, अनड्यू मीन्स रॉन्ग, लाभ उठाने लगे, गलत फायदा उठाने लगे। ऑफ हिज लेनियंस, LENIENC, लेनियंस मीन्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, काइंडनेस, तो उनके काइंडनेस, दयालुता का जो है वो गलत फायदा उठाने लगा राइटर। I started believing that I would get through whether or not I studied. Now narrator started to think in his mind that whether he would study or not, that does not matter for him. Without study, he had also capacity to secure first position in the class, to secure good marks in his class above all. उसके दिमाग में अब आने लगा उल्टा पलटा, अरे अब तो नहीं पढ़ूंगा तो भी पास तो हो ही जाऊंगा फर्स्ट डिवीजन। I developed a fondness for flying kites and most of my time was spent in this activity. Still I had a lot of respect for my brother. कह रहे हैं कि अब भाई भी डांटना कम कर दिए, मेरे दिमाग में भी घमंड आ गया कि बिना पढ़े तो मैं फर्स्ट से क्यों आ ही जा रहा हूँ, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। उसके बाद ये पतंग उड़ाने की आदत विकसित कर ली और भी जॉय वाली आदत विकसित कर ली है, लेकिन फिर भी अपने भाई के प्रति इनका सम्मान कभी कम नहीं हुआ, भाई के प्रति हमेशा समर्पित रहे, सम्मान ही करते रहे। वन इवनिंग, एक शाम, अवे फ्रॉम द हॉस्टल, हॉस्टल से दूर, आई वॉज रनिंग लाइक मैड टू कैप्चर अ फ्री फ्लोटिंग काइट। ये कह रहे थे कि एक कटी हुई पतंग को मैं एकदम घोड़े की तरह एकदम दौड़ रहा था पकड़ने के लिए, ताकि कोई दूसरा ना पकड़ ले। माई आईज वेयर टर्न्ड अपवर्ड्स एंड रिवर्टेड, मेरी जो आंखें थी वह ऊपर की ओर यानी पतंग की तरफ टंगी हुई थी और एकदम उसी पे फिक्स लगी हुई थी कि कहीं गिर न जाए, बस जाऊं पकड़ लूं।
ऑन द एयर ट्रेवलर, ऑन द एयर ट्रेवलर मीन्स ऑन द पतंग, ऑन द काइट, एयर ट्रेवलर यहाँ जो है काइट के लिए यूज किया गया है। दैट वाज रीलिंग जेंटली, रीलिंग मीन्स स्वीपिंग लाइक दिस, जेंटली स्लोली स्लोली टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल, धीरे धीरे वह स्वीप करते हुए जो है नीचे धरती पे आ रही थी। अनमाइंडफुल ऑफ द थिंग्स अराउंड, अनमाइंडफुल मीन्स केयरलेस, टुवर्ड्स द थिंग्स अराउंड मीन्स नरेटर जो है पतंग पे देख रहे थे, टकटकी लगाए थे, नीचे दौड़े जा रहे थे, पतंग भी लहराते हुए आ रही थी और नरेटर को यह ध्यान नहीं था कि नीचे भी तो कुछ होगा, बस ऊपर ही देखने से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन वो तो पतंग लूटने के चक्कर में ऊपर ही बिजी थे आंख लगाए। All of a sudden I came face to face with my brother. Then suddenly what happened that narrator found during his running towards the kite behind the following the kite suddenly faced his brother just face to face. अपने भाई के जस्ट सामने खड़े हुए दौड़ते हुए। He caught hold of my hand there and then and shouted, "Are not you ashamed of running after a one paisa kite? You don't seem to care that now you are in class 8, just one class lower than me." अब उनके भाई जो थे नरेटर के, वो उसका हाथ पकड़े और जोर से डांटते चिल्लाते हुए लाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती? whether you are not realizing same in your heart, in your mind, that you are just chasing the one paisa kite, you have capacity to purchase lot of kites, then what is need to run after or what is need to chase after the one paisa kite? तो कहीं कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक पैसे के पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तुम कितनी पतंग खरीद सकते हो, तुम्हें क्या जरूरत है दौड़ने की? एंड आफ्टर दैट, उसके बाद नरेटर ब्रदर्स फर्दर स्टार्टेड टू इंस्ट्रक्ट अगेन that whether you have forgotten that you are just one class behind me, मीन्स तुम मुझसे सिर्फ एक क्लास पीछे हो, यानी इतनी मेहनत करने पर तो मैं फेल हो जा रहा हूँ, और क्या तुम मेरे इस क्लास में मेरे बराबर लगभग आगे एक क्लास पीछे हो? तुम बिना मेहनत के पास हो जाओगे? तुम भी मेहनत करो तब जाके पास होगे, पतंग के पीछे मत दौड़ो। A man should have some sense of his status. What use is intelligence if it destroys your self-esteem? I am 5 years elder to you, and even if you come to the same class as I, and with the present system of examinations, it is quite possible you would be my classmate next year, and even ahead of me the year after. Even good God cannot close the 5 years gap between you and me. अब उसके भाई जो है कंटिन्यू डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आ रहे, तुम दौड़ रहे हो, अपने स्टेटस का ख्याल करो, क्लास 8 में आ गए हो, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो कि पतंग पीछे दौड़ रहे हो। और अगर भगवान ने चाहा तो, अगर इसी तरह परिस्थिति चलती रही, परीक्षा का सिस्टम चलता रहा, तो अगले साल तुम मेरे क्लास में आ जाओगे, सेम क्लास में, और फिर मैं कहीं फेल हो गया तो हम दोनों सेम क्लास में हो जाएंगे, और आगे भगवान की कृपा रही और सेम परीक्षा सिस्टम रहा तो मैं इसी क्लास में रह जाऊंगा, तुम मुझसे एक क्लास और आगे फिर बढ़ जाओगे, फिर वही पैटर्न और सिस्टम रहा, 1-2 साल और बीतेगा तो धीरे 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 मैं सेम क्लास में रह जाऊंगा और तुम 5 क्लास भी मुझसे आगे हो सकते हो। इसके लिए तुम पढ़ो, जरूरत क्या है? व्हाट इज नीड टू ऑफ द टाइम? नीड ऑफ द टाइम इज द हार्ड स्टडी ऑफ द बुक्स, हार्ड स्टडी ऑफ द सिलेबस। दिस वाज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ द नरेटर। लेखक के बड़े भाई समझा रहे हैं, कह रहे तुम अभी 1 साल बाकी है, हो सकता है मेरे क्लास में आ जाओ, मैं भले फेल हो रहा हूँ, फिर तो अगले साल तुम मुझसे क्लास आगे भी जा सकते हो, उसके साल बीतते जाएंगे, हो सकता है कि तुम 4-5 साल में मुझसे 4-5 क्लास आगे हो जाओ, मैं सेम क्लास में रह जाऊं। तुम पढ़ो, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम बड़े क्लास में आ गए हो, स्टेटस का ध्यान दो, क्या बच्चों की तरफ पतंग के पीछे दौड़ रहे हो? फिर से बेटा पूछो, क्या हाउस पूछ रहे हो, लिख रहे हो, बताओ तो जरा, मैं नहीं देख पाया। शो मी अगेन क्वेश्चन। बेटा शो मी अगेन क्वेश्चन, आप क्या पूछ रहे थे हमसे? ओके, you cannot ever match my experience of the world and life even if you become an MA or a DPhil or delete। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझसे आगे हो जाओ, मेरा कहना ना माने, अपने आप को बहुत सीनियर, यू आर गेटिंग योर सेल्फ एज द ग्रेट सीनियर, great intelligent, you may be, but you can't have the lot of experience as I have, because I am elder than you for more years। ज्यादा से ज्यादा साल में तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम मेरे जैसा अनुभव नहीं रख सकते। शर्म करो और कायदे से पढ़ो।
One becomes wise not by reading books but by seeing the world। कह रहे हैं कि कोई अगर बुद्धिमान होता है तो वह बुक्स पढ़ के नहीं होता है बल्कि दुनिया के अनुभव करके होता है। Our mother never went to school and our father perhaps did not go beyond class 5। We might accumulate all the knowledge in the world yet they will always retain the right to admonish and correct us। एडमॉनिश मीन्स होता है इम्प्रूव करना, टू गाइड करेक्टली, एंड इम्प्रूव मीन्स करेक्ट मीन्स गलतियों में सुधार करना। तो कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा, मम्मी पढ़ी नहीं है, पापा क्लास 5th से ऊपर नहीं गए, फिर भी उनकी इतनी उम्र हो गई है, उन्होंने दुनिया देखा है कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो हम दोनों को सही रास्ता दिखा सके, हमें सही राय दे सकें। पथभ्रष्ट अगर हम हैं, गलत रास्ते पे हैं, तो सही रास्ते पे ला सकें। और ये ऐसा इसलिए है कि भले उनकी एजुकेशन उतनी नहीं है लेकिन उनके पास अनुभव जरूर है जीवन का। They know 1,000 things that we don't। वे हजारों चीज जानते हैं जो हम नहीं जानते, उनके जीवन में इतने अनुभव हैं। So forget that you are my equal now and free। तो इसलिए कह रहा है कि अतः तुम भी भूल जाओ कि तुम मेरे बराबर हो और फ्री हो। चाहे बराबर रहो चाहे आगे चले जाओ, मैं तुम्हें डांटता ही रहूंगा, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। I would not let you to treat the wrong path। To treat means to adopt, चलना। मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। And if you don't listen, I would even use my hand। और आगे करके यदि तुम नहीं सुने तो तुमको एक आध थप्पड़ लगाइबो करूंगा। I was truly ashamed by this new approach of his। नरेटर कहना ashamed means शर्मसार हो जाना, पूरा लज्जा से भर जाना। तो कह रहे हैं कि अपने भाई की बात सुनकर मुझे पूरी तरह से शर्म आ गई। I really became aware of my smallness and I began to look upon him with reverence। रिवरेंस में होता है पछतावा। कह रहे हैं कि अब मुझे अपने भाई से बहुत छोटा होने का ध्यान हुआ कि अरे भाई डांटेंगे क्यों नहीं, भाई तो बड़े हैं, हमारे भले के डांटा है। और अब मुझे अपनी सोच पे फिर से पछतावा होने लगा। With tearful eyes, आंसू भरे आंखों से, I said, मैंने कहा, not at all, you have every right to say it। कह रहे हैं कि भाई हर तरफ से चाहे जैसे चाहो आपके पास अधिकार है, आप मुझे डांट सकते हो, मार सकते हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। My brother embraced me। मेरे भाई ने मुझे embraced मीन्स गले लगा लिया, filled in his arms and said, I would not have stopped you from flying kites। मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए नहीं रोकूंगा और नहीं रोका होता। I too long to fly them। मैं भी उन्हें उड़ाता। But if I were myself to treat the wrong path। कर रहे हैं लेकिन यदि मैं गलत रास्ते पे खुद हो जाऊंगा, How would I stop you? तो मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा। यानी बड़े भाई कह रहे हैं कि मुझे तुमसे नफरत नहीं, तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें पतंग तो उड़ाने देता, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मैं भी उड़ाता, लेकिन जब मैं खुद गलत रास्ते पे पतंग उड़ाने लगूंगा, एकदम ही पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो फिर तुम्हें कैसे डांटूंगा। मीन्स अगर मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता भी हूँ तो इसलिए पढ़ता हूँ कि तुम्हें भी डांट के पढ़ा सकूं। जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से पढ़ाऊंगा। मैं फेल हो रहा हूँ, होने दो, तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम बढ़ सकते हो, भले मैं नहीं बढ़ सकता। दिस वाज द सजेशन फ्रॉम द साइड ऑफ एल्डर ब्रदर इन द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज यंगर ब्रदर। बाई चांस, संयोग से, जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट अ काइट केम फ्लोटिंग ओवर आवर हेड्स। The end of its string was dangling just above us। कह रहा है कि तभी मेरे भैया डांट रहे थे, तभी एक पतंग जो थी उड़ते हुए हमारे ठीक सर के ऊपर से आई और उसका जो धागा था वह ठीक हमारे हाथ के पास, हमारे सर के पास आया। My brother jumped and caught hold of the loose end of the kite string। string means धागा होता है। कह रहे हैं कि मेरे भाई जंप किए और उस धागे को पतंग के पकड़ लिए। Then he ran at top speed towards the hostel। और तब वह तेजी से हॉस्टल की तरफ बड़ी जोर से भागे। एंड आई रैन बिहाइंड हिम, और मैं उनके पीछे भागने लगा। इस तरह से स्टोरी खत्म होती है। दो भाइयों का प्रेम और स्नेह है, एक फैमिली रिलेशनशिप शो करती है और इस तरह से आपकी स्टोरी एंड्स। अब कोई